بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کام پر جانے کی جلدی ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی گھر کا کام سمیٹ دیا تھا، ساتھ ہی ایک نظر اپنی معصوم سی بیٹی پر ڈالی جو بالکل چپ ایک چارپائی پر بیٹھی تھی۔ اسے میں نے ناشتہ بنا کر کروا دیا تھا۔ ہم چونکہ دونوں ماں بیٹی نئے نئے آ کر اس محلے میں بسے تھے، تو میں نے اسے کئی باتیں سمجھا دی تھی کہ تم نے باہر کہیں نہیں جانا ہے، اور چاہے کوئی کتنا ہی دروازہ بجائے تم نے ہرگز دروازہ نہیں کھولنا ہے، بلکہ پورا دن کنڈی لگا کر رکھنی ہے۔ وہ میری باتیں سن کر اسبات میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ کوئی معصوم فرشتہ معلوم ہوتی تھی۔ میری بیٹی میں میری جان بستی تھی۔ وہ بچپن ہی سے اندھی تھی، اور پیدائشی اندھی نہ تھی، بلکہ اس کی آنکھوں کی روشنی چھیننے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سگا باپ تھا۔ مانور میری شادی کے 4 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ شادی کے 4 سال تک میری کوئی اولاد نہ تھی۔ میری اور میرے شوہر کی شدید خواہش تھی کہ ہمارے ہاں جلد از جلد اولاد ہو جائے، بلکہ میرے سسرال والے اور شوہر تو شادی کے 2 سال بعد ہی مجھے دھمکی دینے لگ گئے تھے کہ اگر میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی تو میں دوسری شادی کر لوں گا۔ ان کی ان دھمکیوں سے میں ہر وقت خوفزدہ رہتی اور دن رات دعائیں کرتی کہ اللہ مجھے بھی جلد سے جلد اولاد سے نواز دے۔ پھر کہیں شادی کے 4 سال بعد جا کر مجھے یہ خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی تھی۔ میری ساس مجھے کہتی رہتی تھی کہ ہمارے خاندان میں ہر بہو کو پہلے بیٹا ہوا ہے، اس لیے ہمیں بھی پہلے بیٹا ہی چاہیے۔ میرا شوہر اکرم تو مجھے ہر وقت جتاتا رہتا کہ بیٹی کی پیدائش ہمارے خاندان کے لیے شرم کا باعث بنتی ہے، اس لیے مجھے تمہارے بطن سے بیٹا ہی چاہیے۔ اب بیٹا ہو یا بیٹی، اس میں بھلا میرا اختیار کہاں تھا؟ یہ بات بھلا ان جاہلوں کو کون سمجھاتا جنہوں نے بیٹے بیٹے کی رٹ لگا رکھی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوف زدہ بھی تھی۔ جب میرا 7واں مہینہ چل رہا تھا تو لیڈی ڈاکٹر نے مجھے آگاہ کر دیا کہ تمہارے وجود میں جو بچہ پل رہا ہے وہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے۔ لیڈی ڈاکٹر کی یہ بات میرے دل پر بجلی بن کر گری تھی۔ ایک تو ماں بننے کی وجہ سے میں ویسے ہی ٹینشن میں تھی، دوسری طرف میرے سسرال والوں کی خواہش کے مطابق میں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی پیدا کرنے جا رہی تھی۔ میں اتنی خوفزدہ تھی کہ میں نے اس بارے میں کسی کو آگاہ نہیں کیا، بلکہ چپ چاپ اپنے سسرال والوں کو اس بچے کے استقبال کی تیاریاں کرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میری ساس 2-3 دفعہ مجھ سے پوچھ چکی تھی کہ تم نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ تمہارے بیٹا ہی پیدا ہوگا نا؟ میں ان کی باتیں سن کر ٹالتی رہتی، اور پھر آخر کار وہ گھڑی آ گئی جب میں نے اپنی پیاری سی بیٹی کو جنم دے دیا۔ بیٹی کو دیکھ کر میرے سارے سسرال والوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، اور وہ لوگ جو بچے کی پیدائش دھوم دھام سے منانا چاہتے تھے اب منہ لٹکائے کھڑے تھے۔ مجھے ان کے اترے ہوئے چہروں سے کوئی غرض نہ تھی۔ میں اپنی خود بیٹی کو دیکھ کر بے پناہ خوش تھی۔ میرا شوہر تو اس قدر غصہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے ہسپتال تک نہ آیا۔ ہسپتال میں 1-2 دن گزارنے کے بعد اپنے سسرال آ گئی۔ سسرال میں میری بیٹی اور میرا کوئی خاص استقبال نہ کیا گیا، کیونکہ میرے سسرال والوں کو بیٹا چاہیے تھا جبکہ میں نے بیٹی پیدا کی تھی۔ میرا شوہر اب دن رات مجھ سے ناراض رہنے لگا۔ میری بیٹی پوری طرح سے صحت مند تھی، اسے کوئی نقص کوئی بیماری نہ تھی، بلکہ وہ رنگ روپ میں بھی مجھ سے بہت 2-4 ہاتھ آگے ہی تھی۔ میرا تو اس کو دیکھ دیکھ کر دل بھی نہ بھرتا تھا۔ جب وہ 9 ماہ کی ہوئی تو میں ایک بار پھر امید سے ہو گئی۔ سارے سسرال والے اس بار امید لگا کر بیٹھ گئے کہ اس بار تمہیں بیٹا ہی ہوگا۔ میرے شوہر نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے اس بار بیٹی پیدا کی تو میں تمہیں کڑے کڑے طلاق دے دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئی، اور ابھی حمل کو 6 مہینے ہی ہوئے تھے کہ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب میرے سسرال والے مجھے ہسپتال لے کر گئے تو لیڈی ڈاکٹر نے یہ بری خبر سنائی کہ بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر چکا تھا، اور دوبارہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ یہ دونوں خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ میری اس حالت کا ذمہ دار میرا شوہر تھا، جنہوں نے میرے اوپر یہ دباؤ ڈال رکھا تھا کہ مجھے بیٹا ہی پیدا کرنا ہے۔ میرے سسرال والوں کے لیے یہ خبر کسی صدمے سے کم نہ تھی۔ جب میں ہسپتال سے گھر آئی تو میرے سسرال والوں نے سیدھے منہ مجھ سے بات تک نہ کی۔ میری بچی کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، نہ ہی اسے کسی نے سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ وہ یوں ہی گندی میلی بستر پر پڑی تھی۔ پھر میں نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا۔
لیکن میرا شوہر مجھ سے بات تک نہ کرتا تھا۔ میری بیٹی 2 سال کی ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن اڑتے اڑتے مجھے یہ خبر ملی کہ میرا شوہر کسی دوسری عورت سے شادی کرنے کے چکر میں تھا اور وہ اس عورت کو اپنی بیوی بنا کر گھر لے کر آنا چاہتا تھا۔ میں یہ خبر سن کر چپ چاپ آنسو بہانے لگی۔ جب میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا۔ اس سے جب میں نے اس بارے میں باز پرس کی تو وہ شدید غصے میں آ گیا۔ میری 2 سال کی بیٹی میری گود میں تھی۔ اس نے غصے میں مجھے دھکا دیا۔ اس کا دھکا اتنا شدید تھا کہ میری بیٹی میری گود سے اچھل کر سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے جا گری۔ میں بھی گری تھی، لیکن مجھے اپنی فکر نہ تھی۔ میں چیخ کر اپنی بیٹی کو پکارنے لگی، جو سیڑھیوں سے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے سر سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ میں اسے ہسپتال لے کر بھاگی۔ کافی دن تک اس کا ہسپتال میں علاج ہوتا رہا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ حادثہ اس کی زندگی بھر کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوگا۔ جب ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ دماغ پر لگنے والی چوٹ بہت زیادہ گہری تھی، جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، میری معصوم ننھی شہزادی اندھی ہو گئی تھی۔ اسے یہ دھکا کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے باپ نے دیا تھا۔ میں کس کے آگے جا کے فریاد کرتی؟ میرے سسرال والے بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے، لیکن انہوں نے سختی سے تاکید کی کہ اگر میں نے کسی کے سامنے بھی زبان کھولی تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں دل ہی دل میں ان سب سے نفرت کرنے لگی اور مجھے اپنا شوہر بھی زہر لگنے لگا تھا۔ پھر ایک دن تو جیسے حد پار ہو گئی، جب میرا شوہر اپنی دوسری بیوی کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ میرے سارے سسرال والے اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ جب وہ اپنی نئی بیوی کو گھر لے کر آیا تھا تو سسرال والوں نے اس کا استقبال بڑے اچھے سے کیا تھا۔ وہ سارے مجھے بالکل نظر انداز کیے اپنی خوشیوں میں مگن تھے۔ جب سے میری بیٹی اندھی ہوئی تھی، انہوں نے میرا اور میری بیٹی کا رکھنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ اب دوسری بیوی کے آنے کے بعد تو مجھے اپنے شوہر سے شدید قسم کی نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن میں نے چپ چاپ اپنے شوہر سے کہا کہ اگر تم اپنی نئی بیوی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھے اور میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ میرا شوہر تو یہی چاہتا تھا۔ ویسے بھی اس کی نئی بیوی نے اس پر دباؤ ڈال رکھا تھا کہ یا تو اسے نیا گھر لے کے دے یا پھر اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے۔ اس گھر میں میرے لیے سوائے گھٹن والے ماحول کے کچھ نہ بچا تھا۔ ایک عرصہ ہوا تھا میرے شوہر نے مجھے خرچہ دینا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ اپنی نئی بیوی کے چاؤ چونچلے ہی پورے کرتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے طلاق دے کر یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا رشتہ کتنا کھوکھلا تھا۔ میں اس طلاق نامے کو دکھ سے دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے اس بات کا بھی افسوس تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا۔ اس بیٹی کو تو وہ شاید گود میں بھی اٹھانا پسند نہ کرتا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا اور چپ چاپ چلی گئی۔ وہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر گئی۔ اب میں اپنے بھائی کے گھر رہنے لگ گئی تھی۔ میری بھابھی کا رویہ بھی مجھ سے کچھ خاص اچھا نہ تھا۔ ویسے بھی جس شہر میں میرے میکے والے رہتے تھے وہاں پر کوئی خاص روزگار نہ تھا۔ تقریباً ہر گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ میں بھلا اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے کیسے اپنے بھائی کو پریشان کرتی؟ وہ خود بھی پہلے ہی بہت پریشان تھا، پھر بھی میں گھروں میں لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کر کے اپنا اور اپنی بیٹی کا خرچہ اٹھا رہی تھی۔ میری بیٹی کی چونکہ آنکھوں کی روشنی نہ رہی تھی، اس لیے اسے اپنے چھوٹے چھوٹے کام کے لیے میری ضرورت تھی۔ میں اس کا کسی سائے کی طرح رکھتی اور 24 گھنٹے اس کو اپنے سامنے بٹھا کر رکھتی۔ مجھے اسے دیکھ دیکھ کر رونا آتا کہ وہ ننھی سی جان یہ سب کیسے جھیلتی ہوگی جب اس کی آنکھوں کے سامنے صرف کالا اندھیرا چھایا رہتا ہوگا۔ پہلے بھی اس میں میری جان بستی تھی، لیکن اب تو ایسے لگتا ہے کہ میں اس کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ شاید اسی لیے اللہ نے ماں کا دل بہت نرم بنایا ہوتا ہے۔ وہ اپنے معذور بچوں کا خیال بھی ایسے رکھتی ہے جیسے اس کے بچے کوئی پھول ہوں۔ یوں ہی دن گزرتے رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے میری چھوٹی سی ننھی بیٹی اب 15 سال کی ہو چکی تھی۔ شہر کے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے جب میرے بھائی نے ایک بری خبر سنائی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ شہر چھوڑ کر جہاں اس کی بیوی کے گھر والے رہتے تھے وہاں جا رہا ہے۔ اس کی یہ خبر میرے لیے بہت پریشان کن تھی، کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ یہ گھر بیچ دے گا، لیکن اس نے جاتے جاتے مجھ پر ایک مہربانی کی تھی کہ جب اس نے اس گھر کو بیچا تو اس رقم میں سے جو حصہ میرا بنتا تھا اس نے وہ حصہ مجھے دے دیا۔ وہ رقم تو مجھے مل چکی تھی، لیکن کوئی ٹھکانہ میرے پاس نہ رہا تھا۔ اب اس بھری دنیا میں میں اور میری بیٹی اکیلے تھے۔
नाचार मैंने हालात से मजबूर होकर उस रकम को हिफाजत से अपने पास रखा और हमेशा हमेशा के लिए वो शहर छोड़ दिया और एक नई जगह पर आबाद हो गई। वो एक कमरे का छोटा सा घर था जो मैंने उस नए शहर में आकर लिया था। वैसे मेरे पास इतने पैसे ना थे कि मैं कोई छोटा मोटा अपने लिए घर ही खरीद लेती। जब मैंने वो घर किराए पर लिया तो काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि ये घर चूंकि आबादी से थोड़ा हटकर है तो इसके पीछे झाड़ियां ही झाड़ियां हैं जहां पर खतरनाक सांपों की बस्ती है। काफ़ी लोगों ने मुझे समझाया कि ये घर छोड़कर मुझे किसी दूसरी जगह पर घर लेना चाहिए, लेकिन मैंने उनकी मन घड़त कहानियों को ज़्यादा संजीदगी से ना लिया। वो घर मेरे लिहाज से बिल्कुल ठीक था। उसमें छोटा सा एक कमरा था और उसमें मैं और मेरी बेटी आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते थे। इस शहर में कई अमीर लोगों के घर भी थे। मैंने 2-3 घरों में बात कर ली थी जहां पर मैं घर का काम काज करके अपना और अपनी बेटी का पेट अच्छे से पाल सकती थी। यूं उस नए शहर में आकर मेरी नई जिंदगी का आगाज हो गया। मेरी बेटी जैसे जैसे बड़ी होती गई उसके रंग रूप में वैसे ही निखार आता गया। कोई उसे देखकर ये न कह सकता था कि वो आंखों से नाबीना है। मैं उसे जमाने की बुरी नजरों से बचा कर रखना चाहती थी। जब मैं काम पर चली जाती तो सारा सारा दिन उसकी फिक्र में मुब्तला रहती। मैं सोचती कि कहीं कोई घर में घुसकर मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा न कर दे। वो तो फरिश्ते जैसी मासूम थी। आज तक उसने दुनिया के अच्छे या बुरे रंग को न देखा था। फिर भी मैं अपनी आंखों से उसे दुनिया को दिखाने की कोशिश करती और उसे बताती कि इस चीज का रंग कैसा है और ये देखने में कैसा लगता है। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के लिए ही बने थे। उसकी चाहत मेरे लिए अनमोल थी तो मैं भी उसके लिए किसी कीमती खजाने से कम न थी। कभी कभार तो मैं जिस बाजी के घर काम करती थी उससे कहती कि बाजी अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक चक्कर घर का लगा कर आ जाती हूँ। बाजी मेरी बात सुनकर अचंभे से मुझे देखती और उनसे कहती कि तुम्हारी बेटी अब 17 साल की हो गई है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। बाजी ये बात नहीं जानती थी कि मेरी बेटी आंखों से नाबीना थी। मैं ज्यादातर किसी के सामने ये बात जाहिर नहीं करती थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं ये बात सब में ना फैल जाए कि मेरी बेटी आंखों से नाबीना है। कोई भी शख्स घर में मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर घुस सकता था और मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता था। मुझे अपनी बेटी की दिन रात फिक्र रहती थी। मैं उसका किसी छोटे से बच्चे की तरह ख्याल रखती थी। लेकिन जब भी मैं काम से फारिग होकर घर जाती तो मुझे ये देखकर हैरत होती कि घर का सारा काम मेरी बेटी अपने हाथों से खुद ही कर लेती थी। वो बाहिफाजत घर में मौजूद रहती थी। जिस शहर में हम रहते थे और शहर की जिस साइड पे हमारा घर था वहां की जमीन बहुत रेतली थी। उस जगह के बारे में मशहूर था कि गर्मियों के मौसम में काफी लोगों ने वहां पर मोटे मोटे सांप देखे थे जो तादाद में कहीं ज्यादा थे। उनमें शीश नाग भी थे और इच्छाधारी नाग भी। उस जगह के बारे में मशहूर था कि वहां पर सांपों की एक बस्ती आबाद थी। अगर किसी को कोई सांप नजर भी आ जाता तो वो उसे हरगिज मारने की कोशिश ना करता क्योंकि सुना था कि कई साल पहले किसी ने एक बड़े नाग को छुरियों से मारकर हलाक कर दिया था। उसके बाद जिस शख्स ने उस नाग को मारा था तो उसके खानदान में पैदा होने वाले लड़के रात को सोते तो सुबह मुर्दा हालत में पाए जाते। मरने वाले लड़कों के जिस्म पर गहरे नीले निशान होते थे। ऐसा लगता जैसे उनके जिस्म का सारा खून निचोड़ दिया गया हो। जब से ये बातें पूरे शहर में गर्दिश कर रही थी तो लोगों ने सांपों और नागों को मारने से तौबा कर ली थी और लोग उनके सामने से आंख बचाकर ऐसे गुजर जाते जैसे उन्होंने नाग को देखा ही ना हो। मुझे नाग का कोई डर खौफ ना था। हाँ, लेकिन मैं इंसानों से जरूर डरती थी कि कोई कहीं मेरी मासूम बेटी पर बुरी नजर न डाल दे। और घर में अक्सर मैं गैर मौजूद रहती थी और उसे तन्हा छोड़ने का मेरा दिल भी ना करता था। इस शहर में रहते रहते मुझे काफी अरसा बीत गया था। एक दिन मेरी छुट्टी का दिन था। आज मैं पूरा दिन अपनी बेटी के साथ गुजारना चाहती थी। जब भी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई मैं दस्तक की आवाज सुनकर फौरन दरवाजा खोलने गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला नीली आंखों वाला एक लंबा चौड़ा नौजवान दरवाजे के बाहर खड़ा था। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा खूबसूरत नौजवान न देखा था। तभी मैं उससे कहने लगी कि आप कौन हैं बेटा। तो वो नौजवान मुझे कहने लगा कि मैं इस शहर में नया नया आया हूँ, मेरा खानदान यहाँ से बहुत दूर रहता है, नौकरी की तलाश की गर्ज से मैं इस शहर में आया था।
लेकिन अभी तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली है। प्यास और भूख ने मेरी हालत बुरी कर दी थी, इसलिए आपसे मदद मांगने आया हूँ। उसकी आंखों में बड़ी इज्जत और एहतराम नजर आ रहा था। पता नहीं क्यों मुझसे इनकार नहीं हो सका और मैंने उससे कहा कि आओ बेटा, अंदर आकर खाना खा लो। फिर मैंने उसे कमरे में बिठाया। बाहर सहन में मेरी बेटी चारपाई पर बैठी थी। फिर मैंने किचन से खाना लिया और एक ट्रे में लाकर उस नौजवान को दे दिया। वो पता नहीं कब से भूखा था, जल्दी जल्दी खाना खत्म करने लगा। मैं दिल में सोच रही थी कि अच्छा हुआ मैंने बेचारे को खाना दे दिया। पता नहीं बेचारा कितने दिनों से भूखा था। खाना खाते ही वो मुझे कहने लगा, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ आराम कर सकता हूँ? मैंने उसे वहाँ आराम करने की इजाज़त दे दी और बाहर आकर चारपाई पर अपनी बेटी के साथ बैठ गई। महानूर मुझसे कह रही थी कि अम्मी, कौन आया है? मैंने उससे कहा कि कोई अजनबी है, हालात से परेशान होकर मदद मांगने आया था। मैंने उसे खाना खिला दिया है। मेरा दिल बहुत ही नरम था। ना सिर्फ मेरा दिल मेरी अपनी औलाद के लिए नरम था, बल्कि मुझे सारी दुनिया के बच्चे ही अपने लगते। फिर काफी देर तक मैं और महानूर आपस में बातें करते रहे। उसकी मासूम बातें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी छोटी छोटी मासूम सी ख्वाहिश मुझे बताती रहती थी। एक दिन यूं ही बातें करते करते उसने अचानक मुझसे कहा था कि अम्मी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या मेरी भी शादी होगी? मामू की बेटी अलमास कह रही थी कि जब लड़की जवान हो जाती है तो उसकी शादी होती है और वो दुल्हन बनती है। उसकी मासूम बातें सुनकर मेरा दिल कांप गया और मैं सोचने लगी कि मेरी नाबीना बेटी से भला कौन शादी करेगा। वो दिखने में अगरचे बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके अंदर कमी थी। मुझे उसके लिए ऐसा इंसान चाहिए था जो जिंदगी भर उसका हाथ किसी मासूम बच्चे की तरह थामे रखता। मैं उसे देख देख कर सोचती कि मेरी मानूर के नसीब में कोई ऐसा इंसान हो जो मुझसे भी बढ़कर उसका ख्याल रख सके। थोड़ी देर बाद मैंने कमरे में जाकर उस नौजवान को देखा जो बेखबर सो रहा था। मैं उसे उठाना चाहती थी और कहना चाहती थी कि इस घर में मेरी जवान बेटी रहती है, मैं तुम्हें इस घर में मजीद नहीं रख सकती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों उस नौजवान को देखकर मुझे ख्याल आ रहा था कि ये नौजवान बाकी इंसानों से अलग है। उसके चेहरे पर एक फरिश्ते जैसी मासूमियत थी। वो मजे से मेरे घर में सो रहा था। शायद थकन से उसका बुरा हाल था। उसकी नीली आंखें, लंबा चौड़ा सरापा बिलाशुबा ये जाहिर कर रहा था कि वो एक भरपूर नौजवान मर्द था। ऐसा ही खूबसूरत नौजवान मैं अपनी बेटी महानूर के लिए चाहती थी। उसके चेहरे पर नजर जमाए पता नहीं मैं क्या क्या सोचे जा रही थी। फिर खुद ही अपनी सोच पर हंसने लगी। वाह जमीला, तू भी क्या सोचने लगी? तुझे क्या पता कि ये नौजवान शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, जो तू उसे अपनी नाबीना बेटी के लिए सोचने लगी है? तभी मैंने उस नौजवान के करीब जाकर उससे कहा कि तुम्हें आए हुए बहुत देर हो गई है, अब रात भी होने वाली है, मेरे घर में कोई और मर्द नहीं है, इसलिए तुम इस घर से चले जाओ। मैं साफ साफ उसे कहना चाहती थी कि मेरे घर में नाबीना बेटी है, जिसकी वजह से मैं किसी भी इंसान को रखना अपने घर में गवारा नहीं कर सकती। वो नौजवान अपनी नीली आंखें मसलता हुआ उठ खड़ा हुआ। फिर मुझे कहने लगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतनी देर अपने घर पे जगह दी। लेकिन खाला जान, मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि इस वक्त मेरी जेब में एक पाई भी मौजूद नहीं है। क्या आप मुझ पर एक मेहरबानी कर सकती हैं? जब तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिल जाती, क्या आप मुझे अपने घर पर रहने की इजाज़त दे सकती हैं? मैं जानता हूं कि आपके घर में कोई मर्द नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक मैं इस घर में रहूंगा, आप और आपकी बेटी की अपने दिलो जान से बढ़कर इज्जत और हिफाजत करूंगा। मैं उसकी बात सुनकर हैरत से दंग रह गई। वो इतनी मासूमियत से कह रहा था कि उसके हर लफ्ज पर मुझे सच्चाई मालूम हो रही थी। और फिर ना जाने मेरे दिल में क्या आई, मैंने उसे इजाजत दे दी कि जब तक उसके हालात सही नहीं हो जाते इस घर में रह सकता है। इसी घर में एक छोटा सा स्टोर रूम बना हुआ था। मैंने उसकी चारपाई वहां लगा दी और उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। महानूर मुझे बार बार कह रही थी कि अम्मी, भला आप किसी अजनबी पर ऐसे कैसे एतबार कर सकती हैं, लेकिन ना जाने क्यों मुझे उसकी नीली आंखों में उसके हालात की सच्चाई मालूम हो रही थी और मुझे लग रहा था कि वो कोई गलत इंसान नहीं था। अब वो घर में मेरे साथ रहने लगा। सुबह नाश्ता करते ही वो नौकरी की तलाश में घर से निकल जाता और रात गए तक लौटता। अगर कभी जल्दी भी आ जाता तो मजाल है जो वो महानूर को किसी बात के लिए कुछ कहता, क्योंकि वो भी जान चुका था कि मेरी बेटी महानूर नाबीना है और अपने हर काम के लिए वो मेरी मोहताज थी। तो भला वो उसका काम कैसे कर सकती थी?
उस नौजवान की पाकीज़गी उसकी नीली आंखों से साफ झलकती थी। फिर एक दिन वो मुझे कहने लगा कि वो काम ढूंढने की गर्ज से इस शहर से 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा है। तो मैंने उसकी बात सुनकर उस बात में सर हिला दिया। फिर मैं सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद काम पर चली गई। महानूर हमेशा की तरह घर पर अकेली थी। मुझे नहीं पता था कि एक कयामत मेरे पीछे मुंतजिर होगी। जब मैं शाम को घर वापस गई तो घर का दरवाज़ा खुला पड़ा था और घर में बिखरी हर चीज़ इस बात की निशानदही कर रही थी कि घर में कोई घुसा था। मेरी तो जैसे दुनिया ही अंधेर होने को थी। मैं पागलों की तरह पूरे घर में महानूर को ढूंढने लगी। फिर कमरे के कोने में छुपी मुझे महानूर नजर आ गई, जो ज़ारो कतार रो रही थी। फिर वो मुझे रोते रोते बताने लगी कि घर में 2 आदमी घुसे थे आपकी गैर मौजूदगी में। उन्होंने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाकर स्टोर रूम में बंद कर लिया। काफ़ी देर तक वो दरवाज़ा बजाते रहे लेकिन मैंने दरवाज़ा न खोला। घर की पूरी तलाशी लेने के बाद वो लोग घर से चले गए तो मैं स्टोर रूम से बाहर आई। उसकी पूरी बात सुनकर तो जैसे मैं सदमे से कंग रह गई। खुदा का लाख लाख शुक्र था कि मेरी बच्ची की इज्जत महफूज रही थी। ये किसी मौजज़े से कम न था। वही हुआ जिसका डर था। महानूर का रो रो कर बुरा हाल था। उसे परेशान देखकर तो जैसे मुझे सांस लेना भी दुश्वार लग रहा था। मेरी बेटी उस वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने पुलिस में जाके फरियाद की कि हमारे घर ये वाक़या पेश आ चुका है। भला हम गरीब माँ बेटी की यहाँ कौन सुनता। एक दिन मैंने काम से छुट्टी कर ली और पूरा दिन महानूर के साथ रही। वो एक लम्हे के लिए भी मुझसे जुदा होने को राजी न थी, लेकिन मेरा काम पर जाना भी ज़रूरी था। अगर मैं काम करने ना जाती तो भला हम दोनों माँ बेटी कैसे अपना पेट भरते। दूसरे दिन मैंने महानूर को समझाया कि तुमने अच्छे से दरवाजे को बंद करके रखना है और कोई भला कितना भी कहे दरवाज़ा खोलो, लेकिन तुमने डरना नहीं है। वो बादल नाख्वास्ता मेरे समझाने पर घर पर रह गई। मैं अपने काम पर गई तो बाजी मुझसे काम पर ना आने की वजह पूछने लगी। फिर मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर कहने लगी कि जमीला क्या परेशानी है तुम्हें। उनका इतना ही कहना था कि मैं उनके आगे फूट फूट कर रोने लगी। फिर रोते रोते उन्हें सारी बात बता दी कि कैसे 2 लोग कूद कर मेरे घर में आ गए थे और मेरी अंधी बेटी को उन्होंने किस तरीके से परेशान किया। पता नहीं किस मकसद के तहत वो मेरे घर में आए थे। आप ही बताएं बाजी, भला मैं क्या करूं। कमाना भी मेरे लिए ज़रूरी है, जब भी तो ना मैं अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सकूंगी। मेरी बातें सुनकर बाजी सोच में पड़ गई और मुझे कहने लगी कि ये तो वाकई ही बहुत परेशानी वाली बात है। तुम्हें इस बात का कोई संजीदगी से हल सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। मैं उनकी बात सुनकर हैरत से उन्हें देखने लगी और फिर उन्हें कहने लगी कि बाजी, आप जानते हैं कि मेरी बेटी नाबीना है। भला ये जानकर कौन ऐसा शख्स होगा जो मेरी बेटी से शादी करेगा। तो बाजी मुझे कहने लगी, देखो दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हो सकता है जब अल्लाह ताला ने तुम्हारी बेटी को इस परेशानी में मुब्तला किया है तो इसका कोई हल भी सोच रखा होगा। अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा शख्स है तो तुम संजीदगी से उस बारे में सोचो। अगर मुझसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी बेटी के लिए ज़रूर कुछ करूँगी। वो इतने अच्छे तरीके से मुझे तसल्ली और दिलासा दे रही थी। मुझे उनकी बात सुनकर काफ़ी ढारस हो गई थी। मैं उनकी बात सोच सोच कर पूरा दिन मुस्कुराती रही और ये सोचती रही कि क्या पता मेरी महानूर की किस्मत में भी कोई ऐसा शख्स लिखा हो जो उसके अंधेपन को नज़रअंदाज करके उसे अपनी ज़िंदगी का साथी बना ले। फिर जब मैं घर गई तो महानूर मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। फिर हम दोनों माँ बेटी मिलकर खाना तैयार करने लगे। जब फिर दरवाजे पर दस्तक होने लगी। दस्तक की आवाज़ सुनकर महानूर खौफजदा सी माँ से लिपट गई और कहने लगी कि अम्मी, दरवाजे पर कौन आया है। मैं उसे तसल्ली देते हुए जाकर दरवाज़ा खोलने लगी। वही लंबा चौड़ा नीली आंखों वाला नौजवान मेरी आंखों के सामने था। वो ना जाने कहाँ से लौट कर आया था और मुझसे अंदर आने की इजाज़त मांग रहा था। मैंने उसे अंदर बुला लिया। न जाने क्यों उसे देखकर मुझे ये ख्याल आता कि ऐसा ही खूबसूरत नौजवान मुझे अपनी महानूर के लिए भी ढूंढना है। वो मेरी शक्ल देखकर मुझे कहने लगा कि आप मुझे कुछ परेशान सी नज़र आती हैं। मैं भी परेशान थी, इसलिए फ़ौरन उस दिन वाले वाक़ये से उसको आगाह कर दिया। वो नौजवान सारी बात सुनकर काफ़ी देर तक चुप रहा। फिर मुझे कहने लगा, आप इस बात को अपने दिल से निकाल दें। अब मैं आपके पास आ गया हूँ, इसलिए ऐसा कुछ बुरा इस घर में दोबारा होने वाला नहीं है। मैं हैरत से उसकी बातें सुन रही थी। फिर दूसरे दिन उस शहर में एक अजीब वाक़या पेश आया। जब मेरे घर की बनी हुई पिछली तरफ की झाड़ियों में एक आदमी की लाश मिली थी।
اس لاش کی حالت ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ دیا گیا ہو۔ اس کے پورے جسم پر جا بجا نیل پڑے ہوئے تھے اور ہونٹ کے کناروں پر خون بھی بہہ کر سوکھ چکا تھا۔ آنکھیں خوف سے کھلی پڑی تھیں، جیسے کوئی خوفناک منظر دیکھ کر انسان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھلی رہ جائیں۔ شہر کے کافی سارے لوگ اس لاش کو دیکھ رہے تھے۔ جب میں نے ایک آدمی کے منہ سے سنا کہ مرنے والا یہ شخص کوئی اچھا انسان نہیں تھا، بلکہ شہر کے لوگوں کے گھروں میں کافی چوری چکاری کر چکا تھا اور دن دہاڑے گھر میں بھی گھس کر واردات کرنے میں ماہر تھا، سب لوگ کہہ رہے تھے کہ سارے شہر کے لوگ اس سے بہت تنگ تھے۔ جس نے بھی اس کو مارا ہے بہت اچھا کیا ہے۔ میں لوگوں کی باتیں حیرت سے سن رہی تھی اور سوچنے لگی کہ جو دو لوگ میرے گھر گھسے تھے، کیا ان میں سے یہ ایک تو نہیں؟ کیونکہ بھلا کوئی چور اتنا بہادر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دن دہاڑے لوگوں کے گھروں میں گھس جائے؟ اس کا مطلب ہے کہ ضرور یہ وہی شخص ہوگا۔ تبھی میں مہانور کو آ کر بتانے لگی کہ جس شخص نے اس دن تمہیں پریشان کیا تھا اس کو کسی نے مار ڈالا ہے۔ مہانور کو میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے اس لیے یہ ساری باتیں بتا رہی تھی کیونکہ میں اس کے دل سے ہر ڈر خوف نکالنا چاہتی تھی۔ دوسری چارپائی پہ وہ نوجوان بھی بیٹھا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ساری باتیں وہ پہلے سے جانتا تھا۔ اس نوجوان کے مطابق اسے ایک ایسا کام مل چکا تھا جو وہ دن میں کرتا اور رات میں گھر واپس آ جاتا۔ خرچے کے نام پر وہ مجھے اچھی خاصی رقم دینے لگ گیا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے مزید جگہ بنتی جا رہی تھی۔ نہ جانے میں کیوں اس کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچنے لگی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی طرح میری بیٹی مہانور کو اپنا لے۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میری یہ بات کرنے کی اس سے ہمت ہی نہیں ہوتی، اور میں سوچتی کہ میں اپنی اندھی بیٹی زبردستی کیسے اس کے سر پر تھوپ دوں۔ پھر ایک ہفتے بعد ایک اور خوفناک اور عجیب سا واقعہ پیش آیا، جب انہی جھاڑیوں کے بیچ میں ایک اور خون چوسی ہوئی لاش ملی تھی۔ اس کی لاش کی حالت بھی پہلے والے آدمی سے زیادہ خراب تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے بھی اسی طریقے سے مارا گیا تھا جیسے پہلے والا آدمی مرا تھا، یعنی کہ ان دونوں آدمیوں کو مارنے والا ایک ہی شخص تھا۔ اس کے بارے میں بھی شہر کے لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ یہ بھی اسی شخص کا ساتھی تھا جو پہلے مرا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ہی آدمی اچھے نہ تھے اور باری باری کر کے ان دونوں کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ مجھے ان دونوں کو دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کیونکہ مجھے اچھی طرح یقین ہو گیا تھا کہ یہ دونوں شخص وہی تھے جو اس دن زبردستی میرے گھر میں گھس گئے تھے۔ اگر وہ میری نابینا بیٹی کو کوئی نقصان پہنچا دیتے تو میں کس کے پاس جا کر فریاد کرتی؟ اچھا ہوا ان گندے آدمیوں کا یہی انجام ہونا تھا۔ اب میں اور میری بیٹی سکون میں تھے۔ میں مہانور کو دونوں آدمیوں کا انجام بتا چکی تھی اور اس سے کہتی کہ دیکھو ان آدمیوں نے ہمارے ساتھ غلط کیا اور ان کا کسی نے کیا حشر کیا ہے۔ اب میں اس موقع کی تلاش میں تھی کہ کس دن اس نیلی آنکھوں والے نوجوان جس نے اپنا نام نور بتایا تھا اس سے بات کر سکوں۔ تو کیا ہوا اگر میری بیٹی اندھی تھی لیکن وہ ہاتھ پاؤں سے بالکل سلامت تھی اور گھر کا اکثر کام بھی کر لیتی تھی؟ وہ اس نوجوان کی ذمہ داری اٹھا سکتی تھی۔ اس کی زبان کے مطابق تو اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہ تھا۔ زیادہ تو میں اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی شرافت کی گواہی میرا دل دیتا تھا۔ ایک دن وہ سٹور میں بیٹھا نہ جانے کیا کر رہا تھا جب میں اس سے بات کرنے کی غرض سے اس کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھو مجھے غلط نہ سمجھنا، میری ایک جوان بیٹی ہے اور ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ کوئی میری بیٹی سے شادی کر لے۔ تم میری بیٹی کو اتنے عرصے سے دیکھ چکے ہو کہ وہ کیسی ہے۔ بھلے ہی وہ آنکھوں سے نابینا ہے لیکن اس کے دل میں فرشتوں سے زیادہ پاکیزگی ہے۔ نور، کیا تم میری بیٹی سے شادی کرو گے؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ یہ بات کرنے میں اتنا کیوں جھجک رہی ہیں؟ مجھے بھی آپ کی بیٹی اچھی لگتی ہے اور مجھے اس سے شادی کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مہانور کا نصیب اتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ اس کے نصیب میں اتنا خوبصورت نوجوان لکھا تھا۔ شاید میں بے خبر تھی۔ جب میں نے یہ بات مہانور کو جا کر بتائی تو خوشی سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ اپنی خیالی آنکھوں سے اس نوجوان کا چہرہ دیکھتی تھی اور اس کے بارے میں سوچتی تھی۔ میں اس نوجوان سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگلے جمعہ کو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروا دیتی ہوں۔ تو وہ نوجوان نور مجھے کہنے لگا کہ آپ کو کسی چیز کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
मैं खुद ही जाकर सारा बंदोबस्त कर दूंगा। उसके मुंह से ये बात सुनकर तो मैं खुश हो गई। अब मुझे किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नूर ने सारी जिम्मेदारी पूरी करने का वादा कर लिया था। लेकिन उसकी एक बात से मैं उलझन का शिकार थी कि उसने मुझसे कहा था कि इस निकाह का जिक्र अभी आप किसी से नहीं करेंगी। उसने मुझे बताया था कि वो मस्जिद में ले जाकर इस लड़की के साथ निकाह करना चाहता है, लेकिन आपको घर पर रुकना होगा। मेरा दिल महानूर को उसके साथ अकेला भेजने पर डगमगा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने निकाह के लाल जोड़े में महानूर को उसके साथ रुखसत कर दिया और उसे दुआएं देने लगी। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन नूर पता नहीं महानूर को कहाँ और किस मस्जिद में ले गया था। मेरा दिल धक धक कर रहा था। इतनी देर हो गई थी, ना मुझे उस नौजवान का पता था और ना ही अपनी बेटी का। रात के 9 बज गए, अभी तक उनकी वापसी ना हुई थी। मेरा दिल उछल उछल कर हलक में आ रहा था। मेरा दिमाग चीख चीख कर बार बार यही कह रहा था कि मैंने अपनी अंधी बेटी के साथ कुछ गलत कर दिया है, लेकिन दिल इस बात से इनकारी था कि वो नौजवान मुझे इस तरीके से धोखा दे सकता था। चारों नाचार मैं रोती धोती घर से बाहर निकली और शहर की एक एक मस्जिद जाकर देखने लगी। मैंने कई लोगों से पूछा कि एक नीली आंखों वाले नौजवान के साथ किसी लड़की को देखा है आप लोगों ने, लेकिन सब ने ही मेरी बात से इनकार ही किया था। मैंने इतने लोगों से पूछा, लेकिन कुछ लोगों का तो कहना था कि उन्होंने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिसकी आंखें नीली हों। वो नौजवान कौन था, कहाँ से आया था और मेरी बेटी को अपने साथ कहाँ ले गया था? मैं सदमे से पागल होने को थी और पागलों की तरह पूरे शहर में फिर रही थी। मेरी बेटी का कुछ पता न चल रहा था। फिर मैं एक मस्जिद के दरवाजे के करीब खड़ी होकर रोने लगी। रात के 12 बज चुके थे। महानूर को गए हुए तकरीबन 12 घंटे होने वाले थे। तभी मस्जिद से इमाम साहब निकले और रात के 12 बजे यूं मुझे मस्जिद के सामने खड़े हुए रोते देखा तो पूछने लगे कि क्या परेशानी है तुम्हें खातून? मैं हिचकियां ले लेकर रोने लगी और अपने साथ होने वाले सारे वाक़े को इमाम साहब के सामने बयान कर दिया। आखिर किसके आगे अपने दिल की बात करती? कोई भी तो इस शहर में मेरा अपना ना था। इमाम साहब मेरी सारी बातें हैरत से सुन रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुमने उस नीली आंखों वाले नौजवान पर कैसे भरोसा कर लिया? शायद तुम इस शहर की तारीख नहीं जानती हो। इस शहर में जगह जगह नागों की बस्ती है। कई नाग तो ऐसे हैं जिनकी उम्रें 100 साल से भी ज़्यादा हैं, और वो इतने ताकतवर हैं कि किसी भी इंसानी शक्ल में खुद को ढाल सकते हैं। उन नागों के बारे में मशहूर है कि वो इंसानी खून पीने के भी माहिर हैं, और हर चांद की 14वीं शब को वो एक इंसान को मारकर ताज़ा खून पीने को तरजीह देते हैं। इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि इस खून को पीकर वो मज़ीद ताकतवर हो जाएंगे। तुम जिस नीली आंखों वाले नौजवान का जिक्र कर रही हो, मैं इस शहर में इतने अरसे से रह रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई नौजवान नहीं देखा जिसकी आंखें नीली हों। तुमने ऐसी गलती क्यों की? अब तुम्हारी बेटी का पता चलना बहुत मुश्किल है। वो नौजवान पता नहीं किस मकसद के तहत तुम्हारी नाबीना बेटी को अपने साथ लेकर चला गया है। इमाम साहब मुझे सारी बातें सुना रहे थे और मेरा रोना किसी सूरत न रुक रहा था। मैं सोचने लगी कि मैंने तो उस नौजवान से नेकी की थी, लेकिन शायद मैं लालच का भी शिकार हो गई थी कि उस नौजवान को अपनी बेटी के लिए मुंतखब करके मैं अपनी बेटी को उसके सर पर थोपना चाहती थी। मैं बमुश्किल रोती धोती घर पहुंची। कोई भी हल मेरी आंखों के सामने नजर ना आ रहा था। मेरी मासूम बेटी ना जाने किस हाल में होगी। मेरा घर किसी उजाड़ वीरान आशियाने की तरह बिखरा पड़ा था। अच्छा भला मैं सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। न जाने क्यों मैंने ये सोचा कि अपनी बेटी का निकाह उस शख्स से पढ़ा दूं। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है, और मेरे वहीं बैठे बैठे सुबह हो गई। मैं सोचने लगी कि किसी भी तरह बस मेरी महानूर वापस आ जाए। मुझे अभी बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी। सुबह का उजाला अभी पूरी तरह फैला भी ना था जब अचानक दरवाज़ा बजने लगा। मैं उठकर दरवाज़ा खोलने गई तो मेरे सामने वही नीली आंखों वाला नौजवान और महानूर खड़े थे। मैं अपनी आंखें मसल कर देखने लगी, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही थी। जब मुझे पूरा यकीन आ गया कि मैं नींद में नहीं बल्कि हकीकत में ये सब देख रही हूँ, तो मैंने महानूर को अपने सीने से लगा लिया और फिर उस नौजवान को कहने लगी कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम मेरी बेटी को लेकर कहाँ गायब हो गए थे? मैंने तुम पर एतबार किया और तुमने मेरे एतबार को किरची किरची कर दिया। तो वो नौजवान मुझे कहने लगा, आप गलत समझ रही हैं। मेरा आपकी बेटी के साथ निकाह हो चुका है। हमने जिस जगह पर निकाह किया है वो जगह यहाँ से बहुत दूर है।
इस वजह से आने जाने में बहुत देर हो गई। मुझे इसकी किसी बात पर कोई यकीन नहीं आ रहा था, बल्कि मुझे उससे शदीद खौफ महसूस हो रहा था और इमाम मस्जिद की बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थी। तभी मैं उसे कहने लगी कि तुम आज के बाद हमारे घर मत आना। तुमने मेरी बेटी के साथ झूठा निकाह किया है और मैं इस निकाह को नहीं मानती हूँ। तो वो नौजवान ज़बरदस्ती अंदर आ गया और मुझे कहने लगा कि आपकी बेटी अब मेरे निकाह में है और मेरा इस घर में रहना ज़रूरी है। अगर मैं चाहूँ तो अपनी ताकत से क्या क्या ना कर दूँ, इसलिए चुपचाप आपको इस घर में मुझे बर्दाश्त करना होगा। उस नौजवान की आवाज़ में बेपनाह सख्ती थी और मुझे उसकी सख्ती से डर लग रहा था। फिर मेरे देखते ही देखते उसने इंसान की बजाय एक नाग की शक्ल इख्तियार कर ली। मैं चीख मार कर दूर हटी थी। महानूर मुझसे बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ है आपको, लेकिन मैं उसे क्या बताती कि मेरे खदशात सही साबित हो गए थे। वो इंसान नहीं बल्कि एक नाग था जिसका निकाह मेरी बेटी के साथ हो गया था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली और फिर मुझे कहने लगा कि आप मेरी हकीकत से आगाह तो हो चुकी हैं, इसलिए जब तक मेरा काम नहीं हो जाता मुझे इसी घर में रहना होगा और मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता है। वैसे भी आज तक मैंने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसलिए आगे भी अपना मुंह बंद करके रहें, इससे पहले कि मैं आपकी अंधी बेटी को लेकर कहीं गायब हो जाऊं। मैं उससे बुरी तरह खौफजदा थी। ये मैंने क्या कर दिया था? अपने ही हाथों से अपनी महानूर की जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। नाग के जेरे असर मैं उस घर में रहने लगी। फिर एक दिन जब वो मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि मेरा मकसद आप दोनों माँ बेटी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन मेरी साथी नागिन को इसी शहर के एक आदमी ने अपनी कैद में किया हुआ है। अगर तुम किसी भी तरह मेरी साथी नागिन को आज़ाद करवा दोगी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चला जाऊंगा। वो आदमी बहुत खतरनाक है और मेरी बीवी नागन को मारकर उसकी नागमनी हासिल करना चाहता है। तो मैं उसे गड़बड़ाते हुए कहने लगी कि भला मुझे उस शख्स का क्या पता कौन है वो। तो वो नाग मुझे कहने लगा कि तुम जिस औरत के घर में काम करने जाती हो वो औरत उसी शख्स की बीवी है। तुम किसी भी तरह पता करके ये सारा काम सर अंजाम दे सकती हो। खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं महानूर को उसके साथ छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उस नाग ने मुझे यकीन दिलाया कि मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरे दिन मैं बाजी के घर चली गई काम करने के लिए। बाजी मुझसे पूछ रही थी कि मैंने सुना था कि तुम्हारी अंधी बेटी घर से गायब हो गई थी, कहाँ चली गई थी वो? लेकिन मैंने उन्हें कोई भी बात न बताई और यूं ही बात बनाकर उन्हें टाल दिया। फिर मैं बाजी से कहने लगी कि अगर आप कहें तो मैं आज बड़े साहब के कमरे की सफाई कर दूं। तो बाजी अपने ध्यान में थी और वो मुझे कहने लगी कि हाँ सफाई कर दो, लेकिन एहतियात करना कि उनकी किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाना, क्योंकि वो बहुत गुस्सा करते हैं। उनका इशारा पाते ही मैं फौरन बड़े साहब के कमरे की तरफ चली गई। कमरे में तो नामुमकिन था कि नाग या नागन जैसी कोई खतरनाक चीज़ मौजूद होती। मैं पूरे कमरे को बराबर चेक कर रही थी। फिर मेरी नज़र एक छोटे से दरवाजे पर पड़ी। वो दरवाज़ा किस तरफ खुलता था, मैं उस दरवाजे को पहली बार देख रही थी। कांपते हाथों से मैंने कमरे से चाबियां ली और एक एक लगाकर चेक करने लगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि कमरे का लॉक खुल गया था। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो उस कमरे की हैबतनाक शक्ल देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में जा बजा इंसानी हड्डियां और बोतलों में लाल रंग का खून मौजूद था। जा बजा ऐसी चीज़ें मौजूद थीं जो अक्सर सपेरों के पास पाई जाती थीं। मुझे वो सारी चीज़ें देखकर उल्टी आ रही थी। उस कमरे में छोटी छोटी सी मिट्टी की देगचियां भी मौजूद थीं। वो मिट्टी की देगची कोई तो इतनी बड़ी थी कि उसमें बड़े से बड़ा नाग भी आसानी से आ सकता था। मेरी नज़र इस सबसे बड़ी देगची पर पड़ी और दिल में ख्याल आया कि हो ना हो इसी देगची की कैद में नागिन थी। तभी मैंने देगची का मुंह खोल दिया। जैसे ही मैंने मुंह खोला तो उसमें से एक बड़ा सा नाग मुंह खोलकर झांक रहा था। मैं चीख मार कर पीछे हटी। वो नाग था या नागिन, बस मुझे जल्द अज जल्द उसे आज़ाद करना था। वो देचकी से मुकम्मल तौर पर बाहर आ चुकी थी। देखते ही देखते उसने बाहर का रास्ता लिया और खुली हुई खिड़की से ना जाने कहाँ चली गई। मैंने दरवाजे को वैसे ही लॉक लगा दिया और चाबियाँ अपनी जगह पर रख दी। मैं अपना काम पूरा कर चुकी थी, बस अब मुझे घर जाने की जल्दी थी। मैं घर गई तो वो नाग मेरा मुंतजिर था। मुझे देखकर खुशी से कहने लगा कि आज तुमने मेरी खातिर बहुत बड़ा काम किया है। मेरी बीवी नागन अभी इतनी ताकतवर नहीं है कि वो अपने आप को किसी इंसानी शक्ल में ढाल सके। अगर वो आज उस कैद से आज़ाद ना हो पाती तो कभी भी ताकत हासिल ना कर सकती थी।
तुम ने मुझे खुश किया है, अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को खुश करूं। आज के बाद तुम्हें किसी के घर में भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। इस घर के स्टोर रूम में मैंने इतना बड़ा इनाम रखा है, तुम्हारे जाने के बाद तुमने उसे उठाना है और अपनी पूरी ज़िंदगी ऐश से गुजारनी है। मेरी दुआ है कि तुम्हारी बेटी के नसीब में जैसा तुम चाहती हो वैसा ही हम सफ़र हो। फिर उसने अपने आप को नाग की शक्ल में ढाल दिया और वहाँ से गायब हो गया। मैं हैरत से कंग खड़ी थी। फिर मैंने स्टोर रूम का रुख किया तो एक देगची में सोने चांदी हीरे जेवरात भरे रखे थे, जो मेरी और मेरी बेटी की पूरी ज़िंदगी के लिए काफ़ी थे। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।